Ladies and gentlemen, boys and girls, cyclists and the enthusiasts, welcome to India's first podcast for athletes. This is Hit the Road. I am Rohan Thakar and we are back with another big bang episode. It's Ultra Heroes of Cycling. We are doing this series with two superheroes of cycling. They are ultra cyclist Bharat Pannu and Kabir Rachure. ये दोनों बहुत कलाकार है क्योंकि इन्होंने 1750 किलोमीटर 100 घंटे के अंदर कंप्लीट कर दिए एंड दे आर डूइंग वर्ल्ड्स टफेस्ट रेस दैट इज रेस अक्रॉस अमेरिका. सो वी आर क्रिएटिंग अ सीरीज कॉल्ड अल्ट्रा हीरोज. इट्स अ 2-part episode with one episode having Kabir and the second episode with Lieutenant Colonel Bharat Pannu. So let's begin with this episode, and if you have not listened to us previously, we are on Castbox, Spotify, JioSaavn, Apple Podcast and all other podcasting platforms. So make sure you listen to it on any of these, and we are also on our main website eplog.media. So make sure you subscribe so that you get notified when we release next episode. So this time we have with us Kabir Rachure. बाप रे, 5 बार आरक्यू किया है आपने. उसमें से 3 बार डेक्कन क्लिफहैंगर पोडियम फिनिश किया है. नहीं, 2 बार पोडियम फिनिश किया है. ओके, वाओ. एंड वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेस ही हैज फिनिश्ड. ही इज नॉट जस्ट फिनिश्ड इट, ही हैज वन इट. दैट्स ग्रेट हिमालयन अल्ट्रा, 600 किलोमीटर्स अंडर 37 आवर्स. दैट्स टेरिफिक. वेलकम टू द शो कबीर. थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो. सो कबीर, जो लोग आपके बारे में नहीं जानते हैं, आई एम श्योर कोई ऐसा होगा नहीं साइकिलिंग कम्युनिटी में से, तो कबीर भाई प्लीज़ टेल 2 थिंग्स अबाउट योरसेल्फ. व्हाट डू यू डू एंड हाउ डिड यू गेट इनटू साइकिलिंग? Professionally, I'm an advocate and by passion I do cycling. So 2015 में मैंने पहला DC किया एंड उसके बाद फिर ये स्टार्ट हो गया सब कुछ. तो अभी मतलब इट्स लाइक अनस्टॉपेबल जैसा हो गया कि ठीक है, साइकिलिंग इज लाइफ काइंड ऑफ थिंग. तो 2015 मतलब अब से लगभग 3.5 साल पहले. करेक्ट. तो 3.5 साल में हाउ डिड यू क्रिएट अ माइंडसेट दैट यू वांट टू डू वर्ल्ड्स टफेस्ट रेस? Actually, I guess 2015 I started with my cycling and 2016 I attempted my first RQ. Okay. Which was Deccan Cliffhanger 5th edition or 4th edition. So I started with cycling because of Milind Soman. So one day I was watching news on TV and I saw Milind Soman did full Ironman, and I was like, ki, how can somebody cycle for 180 kilometers? Yes. And I thought that I'll give a try for cycling and all. So मैं गया Everest Cycling Culture में एंड मैंने एक मोमेंटम साइकिल खरीदा. हाइब्रिड था. तो आई थॉट कि मैं इसके ऊपर ट्राई करूँगा कि कैसा है. एंड वहाँ से सब कुछ स्टार्ट हुआ. फिर धीरे धीरे 60, 70, 100, 200, 300, 400, 600, 1200, then 1800 and now we are thinking about 5000 kilometers. Terrific. So how did you start your training with when you started with Deccan Cliffhanger as your first ultra race? So what was in your mind when you started that? How is it different now when you're attempting all these races and finishing in podiums? That time when I was not aware about the coaching and cycling properly, so I used to think that everything depends on the equipments. So it was like I used to think if I have a good bike then I'll do well, if I have good wheels then I'll do well. So that was the issue with me. But once I got into this properly, so I came to know that no, equipment will help you, but you have to train for that properly. So my first DC was my eye-opener because I missed my RQ by 32 minutes. And, just 32 minutes. Just 32 minutes. And Ela reached 32 minutes before me, Ela Patil. Right. So I was like, what super girl she is. मतलब इतना कैसे कोई कंटिन्यूसली साइकिल चला सकता है. एंड फिजिकली इफ एनीबडी look at us, मतलब if Ela and me are standing together, so Ela will be like half of me and she reached the finish line half hour before me. Right. And the cutoff time for her was 34 hours. Still she reached in 32 hours and cutoff time for me was 32 hours, but I reached in 32 or 32 minutes.
Okay. So after that I took cycling little seriously. So I used to train for regularly. I used to go for BRMs regularly. I used to look after my diet and everything. Right. So when you look at the training aspect, which is the first part, because without training you cannot even think of attempting any of these events. So when you talk about training, what were the changes that you got in your training? So initially I used to train daily after my first Deccan Cliffhanger. So I used to ride for 30 kilometers, 20 kilometers daily. I used to go for gym, for cross training. Then I used to attempt BRMs every month. Then training, like I never rode too much, like 400 or 500 weekly or something. I used to ride 100 kilometers or 150 kilometers weekly, but I was consistent. Right. So then thereafter I did my second DC, which I finished in podium third. I was third in that race. So after that I attempted Ultra Spice. I was second in Ultra Spice. Then thereafter I met Miten Thakkar, who is my coach. Okay. So from last March, like March 2018, I got to know about the real training of the cycling. Like what is high intensity training, what is tempo ride, what is FTP, what is VO2 max, what is your intensity factor or something. So from March 2018, I am into proper ट्रेनिंग. तब तक ऐसे ही कर रहे तब तक ऐसे ही था मेरे खुद के ऊपर, मतलब. और उसमें भी पोडियम में आए थे. हाँ, उसमें भी पोडियम में आया था, बिकॉज आई गेस जो भी मैं बिना जाने कर रहा था शायद वो अच्छा ट्रेनिंग था. लाइक आई यूज टू राइड ऑन पाम बीच फॉर स्पीड ट्रेनिंग, बिकॉज पाम बीच इज टोटली फ्लैट टेरेन एंड आपको रोलिंग टेरेन नहीं मिलता है, तो यू हैव टू कीप पेडलिंग कंटिन्यूसली. सो उससे मेरा केडेंस अच्छा हुआ था, उससे मेरा कोर स्ट्रेंथनिंग हुआ, बिकॉज मैं एरो पे ज़्यादा टाइम तक रह पाता था, बिकॉज ट्रैफिक नहीं रहता था. देन फॉर हिल क्लाइंबिंग आई यूज टू डू पार्सिक हिल का क्लाइंब, दैट इज ओनली 1.5 किलोमीटर का क्लाइंब, बट आई यूज टू रिपीट द क्लाइंब कंटिन्यूसली. So I used to do 4 loops, 5 loops, 8 loops, sometimes 10 loops. So once I met Miten Thakkar and I came to know about the training plan and all, so I thought यार हाँ मैं ये करता था, मतलब हिल रिपीट्स में करता था. मैं स्पीड ट्रेनिंग के लिए, टेम्पो राइड के लिए बड़े चेन रिंग पे चेन डाल के मैं चलाता था. तो जो भी मैंने ना जाने या जो भी मैंने ट्रेनिंग किया था वो एक्चुअली अच्छा ट्रेनिंग करेक्ट था. तो मतलब वो तुक्का लग गया, हो गया. एंड हाँ, पोडियम आए मेरे वो ट्रेनिंग की वजह से. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हाउ आफ्टर कोचिंग आपका ट्रेनिंग कैसे चेंज हुआ? ओके, आफ्टर कोचिंग के पहले मेरा 200 किलोमीटर में पर्सनल बेस्ट था, सम 10 आवर एंड 30 मिनट्स. सो जब कितना डिस्टेंस? 200 किलोमीटर. हाँ, सो उसके बाद जब हमने ट्रेनिंग स्टार्ट किया तो मेरा एक टाइम पे पर्सनल बेस्ट आया 8.5 आवर्स. फिर धीरे धीरे मेरा जो ट्रेनिंग का जो शेड्यूल था वो काफ़ी बढ़ने लगा. इनिशियली आई यूज टू राइड फॉर 150 और 180 किलोमीटर्स मैक्स पर वीक. देन आफ्टर ट्रेनिंग इट वाज going up to something 400 and 500 kilometers per week. So it was huge difference, because I used to ride almost thrice which I used to ride earlier. Right. So धीरे धीरे माइलेज बढ़ता गया. देन बाद में ट्रेनिंग के आवर्स बढ़ते गए. देन आई यूज टू वर्क ऑन माई डिफरेंट मसल्स डेली. मेरे को कभी हार्ट रेट के हिसाब से ट्रेनिंग करना होता था, कभी पावर मीटर के हिसाब से ट्रेनिंग करना होता था. देन उसके बाद आई अटेम्प्टेड वन चारोटी वाला सेम 200 का BRM, in which my personal best was 10 hours and 30 minutes, and I finished that 200 kilometer in 6 hours and 30 minutes. Okay. Because of the training. So it was 3 years before, but after training I did it in 6 hours 30 minutes. So almost 4 hours मैंने कम किया टाइम. एंड फिर जो मैंने सेकेंड DC किया था, इन विच आई वॉज इन पोडियम. So that in that DC, Amit sir was also riding, Amit Samarth. So he did finished in 25 hours 40 minutes something or 30 minutes. So I was like यार ये सुपरसोनिक स्पीड है यार, मतलब इतना अचीव करना तुमको कैसे पॉसिबल होगा. मतलब उनके टाइम में और मेरे टाइम में ऑलमोस्ट 3 घंटे का गैप था.
हाँ. I finished in 28 or 40 minutes. He finished in 25 40 minutes. But thereafter I did Ultra Spice. I got into proper training. Then I did my third Deccan Cliffhanger last November. Yeah. So all the competitors were superbly trained, like Chaitanya Velhal, Mayank Tripathi, Koken Uzuntas, Ashwin Govind Swami, and Bharat Pannu. So all were out of the मतलब Full competition mode में थे वो. competition mode में थे. तो मेरे को पता था कि सबका पर्सनल बेस्ट आने ही वाला है इसमें, हाँ. बिकॉज सब लोग एक दूसरे को देख के पुश करेंगे ही करेंगे. एंड तब तक जाके मेरे में भी ऐसा होता कि हाँ यार बस मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ इतना, मेरे को रैम जाना है तो मतलब मेरे को confidence कम्पीट है. करना पड़ेगा. नहीं तो अगर मैं रैम जाने वाला हूँ, अगर मैं 10th नंबर पे आऊँगा और 10 लोग मेरे पहले ख़त्म करेंगे तो दैट विल भी थोड़ा मॉरली मेरे लिए अफेक्ट करेगा, बिकॉज मेरे को डाउट होगा कि वेदर आई एम ऑन राइट पाथ और नॉट फॉर द ट्रेनिंग. सो दैट डेक्कन क्लिफहैंगर आई फिनिश्ड इन 24 और 15 मिनट्स. सो मेरे लास्ट डेक्कन क्लिफहैंगर से ये डेक्कन क्लिफहैंगर में भी ऑलमोस्ट 4.5 आवर का टाइम ज़्यादा अच्छे से आया था. सो मतलब हाँ, बिकॉज ऑफ गुड ट्रेनिंग एंड गुड कंसिस्टेंसी यू गेट रिजल्ट्स. सो तुमको कोई भी इवेंट करने के पहले तुमको ट्रेन करना मस्ट है. तुम ऐसे उठ के महीने के एंड में जाके BRM करोगे और सोचोगे कि हो जाएगा अच्छे से, तो नहीं होगा. क्योंकि तुमने बॉडी को जो सिखाया है, तुमने जो उसको ट्रेन किया है, तुमको रिजल्ट तभी मिलेगा. सो इट इज़ लाइक रनिंग अ कंपनी. Of course. You have to invest in that. You have to invest for a long period, and thereafter it will give you returns. Right. So it's like Rome wasn't built in a day. Correct. Yes. तो आप एक लॉयर भी है एंड अल्ट्रा साइकिलिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन, टाइम से भी और फैमिली से भी. तो वो कैसे मैनेज करते हैं आप? लकीली मेरे को ऐसा, जैसे हमारे बॉलीवुड मूवीज़ में स्ट्रगल्स होते हैं कि ये हुआ है, ऐसे हुआ है, या ये भी मैनेज करना है, वो भी मैनेज करना है, उसकी वजह से हमें अपने पैशन पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है. ऐसा मुझे हुआ नहीं बिकॉज ऑफ माई सिस्टर. So and my family and my जीजू and everyone, because they people are like तू कर, ते को जो करना है, because हम लोग तो काम करते ही है, तू भी काम करता है of course, but तेरा ये पैशन है तो तू अचीव कर ले जो भी करना है, एंड काम होता रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो दे ऑल सपोर्ट मी लाइक एनीथिंग. मतलब मेरे ट्रेनिंग का ख्याल रखना, मेरे सारे ट्रिप्स का ख्याल रखना, रेसेस का ख्याल रखना, न्यूट्रिशन का ख्याल रखना, तो सब कुछ मेरे को मेरे को सिल्वर स्पून दिया है भगवान ने और मेरे को सिर्फ काम करना है, मतलब मेरे को सिर्फ ट्रेन करना है प्रॉपरली. सो हाँ, मैं ट्राई करता हूँ कि मैं जितना जस्टिफाई कर सकूँ इन लोग का इनपुट है, मैं उतना ही ज़्यादा ट्रेन करता हूँ और ट्राई करता हूँ कि हाँ ठीक है, अगर ये लोग मेरे लिए इतना मेहनत करें तो मैं इतना सा तो अचीव कर ही सकता हूँ. वाह. मतलब आप सिर्फ अकेले नहीं कर रहे हो, आपके पीछे जो बैकबोन है वो पूरा आपको फोर्स कर रहा है आगे जाने के लिए. मतलब ऐसे हुआ है कि आई एम लाइक 1% एंड जो मेरे पीछे लोग हैं वो 99% है. तब कि ऑलमोस्ट उल्टा होता है, 50% आप होते हो, 50% बाकी का जो एनवायरनमेंट होता है. लेकिन मेरे को लगता है कि हाँ, आपको ट्रेनिंग करना है, कुछ भी अचीव करना है, या आपको कोई भी इवेंट्स करने हैं, या कोई भी टास्क है, तो आपको आपके जो आजू बाजू में जो एनवायरनमेंट है, या यू लिव इन विच एनवायरनमेंट, यू हैव टू गेट सम पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव आउटपुट फ्रॉम द पीपल. अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो ठीक से. बिल्कुल. तो आप नहीं परफॉर्म कर पाओगे. सो आई थिंक हाँ, आपके फैमिली का और दोस्तों का और सब लोगों का सपोर्ट होना इज़ मस्ट. अगर आप अकेले ही चलोगे तो आप ज़्यादा देर तक नहीं चल पाओगे. करेक्ट. तो अब तक आपने 6 RQ इवेंट्स किए हैं, के ऊपर दिव्या ने एक अवार्ड भी रख दिया है टू सेलिब्रेट दैट यू हैव कंप्लीटेड सो मेनी इवेंट्स एंड फिनिश्ड पोडियम इन ऑल ऑफ द इवेंट्स. सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन ईच ऑफ देम एंड उसमें से क्या आपको सीखने मिला? So every event of Inspire India gives me some different experiences. I feel the Deccan Cliffhanger is kind of a reunion of all the cyclists from Bombay, Pune, from all over the India. Yes. Because the participants come for the Inspire India like in huge numbers. So 70 participants है या 60 participants है,
तो जब वो रेस खत्म होता है उसके बाद, सो इट्स वन डे रेस. सो आई फील अगर तुम प्रॉपरली ट्रेन करते हो तो डीसी इज क्वाइट पॉसिबल टू डू इट इन आरक्यू टाइमिंग्स. बट डीसी इज मोस्ट एंजॉयबल रेस. तुम जाओ, अपना माइंड फ्रेश रखो, 650 किलोमीटर्स करो और एंजॉय करो गोवा में. तो दैट इज गुड फॉर योर ट्रिप और सम हॉलीडे. और चलो साइकिलिंग भी करना है, एंड 650 किलोमीटर तो बॉडी इतना ज़्यादा फटीग में भी नहीं जाता. अभी हम इतने बड़े बड़े नंबर्स की बात करते तो 650 भी कुछ नहीं लग रहा है. मैं भी शायद से जब मैंने फर्स्ट टाइम डीसी किया था तब मुझे ऐसा था कि यार 650 करना है 32 आवर्स में. और अभी ऐसा लगता है कि ठीक है, बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग. ऑफ कोर्स दिस इज बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग. सो बट हाँ, डीसी इज आई गेस द मोस्ट इजीली डूएबल. ये ऑलमोस्ट बाकी के जो 3 रेसेस है उसमें से. बट अगर आप बाकी 600 किलोमीटर के साथ इफ यू कंपेयर डीसी, देन डीसी इज superbly tough because it has elevation gain of 6,500 meters. So almost 10 meter per kilometer and only 32 hours. So this is quite difficult if you are not properly trained, and and this is quite possible if you are properly trained. So yeah, and the second race I guess Ultra Spice, which I love the most because it's multi-day race. So it has time limit of 120 hours. It has elevation gain of 22,500 meter. So you get time to feel pura ride and everything. In DC, what happens if you are planning to win the race or you are planning to do the podium thing, and if you did a chota sa bhi mistake, so somebody will take that position. Like in quick changes. Like in this DC, this happened with many of the racers. So in Ultra Spice, you have time to do the things properly. Or if you have done something wrong, you have time to correct it. So 5 दिन का race है, but it is challenging for the crew more than the rider. Because तुम्हारे crew को 5 दिन तक almost रोड पे जो भी है तुम्हारे पीछे गाड़ी चलाना है, तुम्हारे फूड का ख्याल रखना है, तुम्हारा न्यूट्रिशन देखना है, तुम्हारे टेंट्रम सहन करने हैं. तो क्रू के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड अल्ट्रा स्पाइस में तुमको सब मिलेगा, लाइक 42 डिग्री सेल्सियस से लेकर -1 डिग्री सेल्सियस तक. एंड मोस्ट रिगरस रूट आई गेस इज हिमालयन अल्ट्रा, बिकॉज it is high altitude race. It starts from Leh, which is 3,300 meter altitude. Right. It goes to Dras, which is the second most coldest human inhabitat in the world. It goes to the Fotula Pass, Namikla Pass. Fotula Pass is around some 4,200 meter. And this was the first race when I thought कि नहीं, मेरे को नहीं पेडल करना बॉस, मैं बैठूंगा, मेरे को साइकिल नहीं करना है. बिकॉज तुमको ठंड लग रहा है, बट तुम अपने गार्मिन में देख रहे हो या तुम बाहर देख रहे हो तो द टेम्परेचर वॉज 42 डिग्री सेल्सियस. सो मतलब तुमको चटके भी लगते हैं. तुमको लगता है कि नहीं ठंडा भी है, तुमको ज़्यादा ऑक्सीजन की वजह से बॉडी ज़्यादा सोर होता है, रिकवरी प्रॉपर नहीं होता है, तुमको हाई एल्टीट्यूड सिकनेस होने लग जाता है, तुमको डिजीनेस फील होता है. एंड मतलब इतना टफ रेस मैं नहीं सोचता हूँ कि वर्ल्ड में कोई होगा. एंड दिस ईयर शी इज कमिंग विथ सम 900 किलोमीटर विच हैज़ 18,000 मीटर elevation gain in 900 kilometer, and it has highest pass of 5,500 meter. So I'm excited about this more than RAM. So I want to do this badly. So I completed all her 3 races. So she came up with the idea that I'll give the Ultra Award on your name, who will finish these 3 races in some 3-year time span or 1-year time span. So anybody who's attempting these 3 races will get award on my name. So I think that is kind enough because of Divya. I think I don't think that ऐसे कोई करेगा भी मेरे लिए, बट शी थिंक्स दैट आई डिजर्व दिस, सो शी डिड इट. ऑफ कोर्स हिमालयन अल्ट्रा की बात करें तो इट्स हाईएस्ट, बहुत हाई है वो,
बहुत हाई नहीं, हाईएस्ट है वो हाईएस्ट है वो एक्चुअली। तो उसके लिए ट्रेनिंग कैसी की? बिकॉज इन बॉम्बे तो सी लेवल है, वहाँ अपने यहाँ पे इतना एलिवेशन भी नहीं है, तो उसका ट्रेनिंग कैसे स्टार्ट किया आपने? नहीं, तुम हाई एल्टीट्यूड का ट्रेनिंग करने के लिए तुम्हारे पास एक तो यू हैव टू गो एंड स्टे देयर, मतलब अगर तुम वहाँ पे ही लोकलाइट हो तो बेस्ट है। अगर तुम नहीं हो तो द बेस्ट थिंग यू कैन डू, गो 10 days before the race, stay there, acclimatize well, because after 7 to 8 days your body start producing the red blood cells to get used to for that high altitude का environment जो भी होता है। ओके सो ट्रेनिंग आपका वही रहेगा जो आप नॉर्मली करते हो यहाँ पे। बेस्ट थिंग जो है और जो तुम्हारा पूरा परफॉर्मेंस चेंज करेगा, दैट इज you have to go there in advance. At least I will prefer 10 days because I was there for 10 days. ओके And अगर आप 10 से ज़्यादा दिन हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। हाँ, लेकिन उतना टाइम निकालना पॉसिबल नहीं होता है किसी के लिए, लेकिन हाँ एटलीस्ट गो मिनिमम गो 7 days बिफोर द रेस बिकॉज इट विल मेक यू कंफर्टेबल विद दैट क्लाइमेट। एनवायरनमेंट। अच्छा कबीर भाई, एक और पूछना था मुझे कि इतने सारे जो रूट्स है उसमें डिफ़िकल्टी लेवल को आपने कैसे कोप अप किया, स्पेशली डिफ़िकल्टी इन स्लीप डिप्रिवेशन, ओके, जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कोई भी अल्ट्रा रेस में, क्योंकि कोई भी 2 घंटा 3 घंटा उससे ज़्यादा सोएगा तो रेस ख़त्म हो जाएगा वो टाइम में। तो उसको कैसे ओवरकम किया, और बहुत सारे फैक्टर्स है उसके सराउंडिंग भी, तो उसके बारे में थोड़ा प्लीज़ नॉलेज दीजिए। सो तुमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि तुमको सबसे ज़्यादा अच्छा नींद कौन से टाइम पे आता है। लाइक सम पीपल स्लीप एट नाइट प्रॉपरली, सम पीपल गेट स्लीपी इन द आफ्टरनून, हाँ सम पीपल गेट स्लीप आफ्टर 3 o'clock इन द नाइट। मतलब किसी को होता है कि सुबह 4 से 6 के बीच में मेरे को बहुत अच्छा नींद आता है, हाँ हाँ एंड उसके पहले मैं रेस्टलेस होता हूँ। तो तुमको एक ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि तुम कब Deep sleep. सबसे ज़्यादा डीप स्लीप में जाते हो। मतलब ऐसे कि तुम उसके ज़्यादा, मतलब वो टाइम में तुमको नींद आता ही आता है। हाँ हाँ सो तुमको वो स्केड्यूल देखना पड़ेगा। लाइक आई फील स्लीपी इन आफ्टरनून टाइम, लाइक 2 to 4 o'clock और समथिंग। सो आई फिक्स माई स्लीप साइकिल इन दैट आफ्टरनून सेशन। सो आफ्टरनून में एक तो फ़ायदा ये होता है कि मेरा धूप का जो टाइम है वो निकल जाता है। ओके सो बॉडी ज़्यादा फटीग नहीं होती 2 से 4 के बीच। 2 से 4 के बीच में, तो बॉडी ज़्यादा फटीग नहीं होती है। एक तो ऐसे हमारे लिए इंडियन पीपल के लिए जो भी है वो लंच टाइम होता है, तो मैं प्रॉपरली खा लेता हूँ पहले, फिर मैं नहा लेता हूँ और नहाने के बाद मैं सोता हूँ। एंड हर एक का अलग अलग स्लीप साइकिल होता है। मतलब स्लीप साइकिल का टाइम ही होता है 45 मिनट्स अगर आपको प्रॉपर स्लीप साइकिल चाहिए तो किसी किसी को 1.5 घंटा लगता है, किसी किसी को 3 घंटा लग सकता है। बट आपको ही फिक्स करना पड़ेगा आपके स्पीड के हिसाब से। अगर यू आर फास्ट इनफ टू कैच विद द अदर पीपल एंड एवरीथिंग, सो यू कैन स्लीप फॉर मोर ड्यूरेशन और समथिंग। बट आई फील 1.5 घंटे का स्लीप इज इनफ, एंड इट्स ऑल मेंटल ब्लॉक। अगर तुमको पता है कि तुमको ये टारगेट है, तुमको ये करना ही है, तुमसे मतलब तुमको करना ही पड़ेगा। सो हाँ ठीक है यार, मतलब कुछ ज़्यादा चेरिश करने के लिए अगर तुमको 4 दिन तक अगर कम सोना है तो मतलब सो लो, उसके बाद तुमको सोना ही सोना है ना। 2 दिन तक तुम सो जाओ बाद में, लेकिन उतना टाइम तुमको खींचना ही पड़ेगा। हाँ, बट नेवर रिस्क योर लाइफ बिकॉज ऑफ स्लीप डिप्रिवेशन, बिकॉज आई स्लेप्ट सम टाइम ऑन द साइकिल। तुमको हेलुसिनेशंस होता है, तुमको पता होता है कि तुमको नींद आ गई, लेकिन तुमको लगता है कि नहीं ठीक है मैं आधा घंटा चला लूँगा, सो जाऊँगा। लेकिन तुमको 1 सेकेंड लगता है कि तुमको नींद लगेगा और तुम गिर जाओगे। तो व्हेनेवर यू फील कि हाँ नहीं आई एम डिजी, स्लो सो जाओ। चाहिए तो आप ब्लैक कॉफ़ी पी लो, ब्लैक कॉफ़ी पी के आप सो जाओ, बिकॉज जब तक वो कॉफ़ी वर्क करेगा तब तक आपका एक 15 मिनट का नैप हो जाएगा। ऐसे नहीं कि आप कॉफ़ी पी लोगे और फटाक से कॉफ़ी आपको एनर्जी देगा, नहीं देगा। वो बॉडी में जाएगा, उसके बाद उसका इफेक्ट आना चालू होगा। तो कॉफ़ी पियो, 10 मिनट का नैप लो और फिर उसके बाद उठ के चलाओ। लेकिन रिस्क में मत लो कुछ भी कि नहीं मेरा टाइम कम हो रहा है तो मैं, बिकॉज आई हैव सीन पीपल राइडिंग विद स्लीप डिप्रिवेशन एंड दे आर नॉट फास्ट। मतलब दे विल गेट स्लो इन देयर स्पीड बिकॉज ज़्यादा ध्यान उनका रोड पे जाता है, वो प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, तुम्हारा ब्रेन प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। और अगर तुम 2 घंटे तक सो जाओ तो फिर तुम्हारा बॉडी काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा, तुम वो कैच कर लोगे टाइमिंग, उतना रिकवरी हो जाता है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देना है आपकी हेल्थ को, बिकॉज आप हो तो आप 1000 रेस आएंगे बॉस, लेकिन एक रेस को आप रिस्क लेके नहीं जा सकते हो।
तो हाँ ठीक है, अगर स्लीप डिप्राइव हो तो सो जाओ, सो के फिर चलाओ. इन अल्ट्रा रेसेस एवरी डे इज डिफरेंट. ऑन सम डे यू विल गो लाइक रॉकेट, ऑन सम डे यू विल क्रॉल लाइक टॉर्टोइज. तो हाँ, ये टाइम आता जाता रहता है, तो तुमको वही ओवरकम करना है. व्हेन यू गेट स्लो यू थिंक दैट हाँ बस क्लाइमेट ही ऐसा, सब लोग ही स्लो चला गए होंगे, कोई फायदा ही नहीं है. मतलब समटाइम्स यू गेट हेड विंड्स, समटाइम यू गेट टेल विंड्स. टेल विंड्स होता है तो तुम बहुत फास्ट जाते हो. कभी कभी कोई तुम्हारे आगे होता है तो तुमको लगता है कि ये इतना कैसे फास्ट जाएगा, बस बिकॉज उसको भी टेल विंड मिल गया, वो भी फास्ट ही जाएगा, वो स्लो थोड़ी जाएगा. कभी कभी तुम स्लो होते हो तो सोच लो कि हाँ वो भी स्लो ही रहेगा, बिकॉज वही क्लाइमेट उसको भी मिलने वाला है. तो हाँ, वहाँ पे हर एक दिन तुमको डिफरेंट ही मिलेगा, तो तुमको वही ओवरकम करना है कि बस ठीक है, थोड़ा सा टाइम है, 4 घंटे है, चला लो, नीचे से डाल के पेडल करो, बस. वो टाइम एक बार पास हो जाता है तो यू नेवर नो. सब लोग क्रिकेट मैच यहाँ पे देखते ही है, तुम लोग पहले नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि कौन जीतेगा, क्या होगा. बिल्कुल. हम सब ने लास्ट ओवर में भी मैचेस घूमती हुई देखी है. T20 का वर्ल्ड कप था, पाकिस्तान के साथ जब मैच था, बॉल आउट हुआ, किसने सोचा था कि ड्रॉ होगा, बॉल आउट होगा और बॉल आउट में हम जीतेंगे. सो सारे स्पोर्ट्स वैसे ही होता है, मतलब यू कैन नॉट, गेम है तो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट समथिंग कि ये होगा, या वैसा प्रिडिक्शन लेके चलना भी नहीं चाहिए. अपना टारगेट रखो, ट्राई करो कि जिसको उसको अचीव कर लो, जितना क्लोजली अचीव कर सकते हो करो, वही तुम्हारे हाथ में. बाकी सब मतलब तुम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हो. तो रैम का आपको कब आइडिया है कि रैम करना है? ओके, रैम करना है, मेरा आइडिया आया था आफ्टर क्रूइंग फॉर समीम रिजवी. So he's first Indian to attempt the RAM solo category. Okay. He did finish the RAM in solo category. He's the first finisher from India, but unfortunately he finished 40 minutes beyond After the time. cutoff. So you can imagine, after riding 5,000 kilometers, he did finish the race after 40 minutes. And in that race, he went off-route for 90 kilometers. Oh. So he got the 2 penalties for breaking the signal and everything. So ये सारा होके मतलब I can imagine कि कितना frustrate करता होगा. So I did crew for him in 2017. So तब मैंने जब रूट देखा तो I was like कि हाँ doable है, nothing like कि सुपर ह्यूमन्स ही कर सकते हैं कोई, तो नॉर्मल साइकिलिस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन तुमको डेडिकेशन देना पड़ेगा एंड तुमको उतना ट्रेन करना पड़ेगा. तो अगर तुम उतना ट्रेनिंग एंड डेडिकेशन दोगे तो मतलब एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. तो उसके बाद मैंने सोचा कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, तो मैं भी करूँगा, मैं ट्रेन करूँगा एंड फिर मैं ट्राई करूँगा. तो आप जब रैम में थे तो आपके क्या दिमाग में नोट्स बने कि ये ऐसा हो सकता है, ये करना चाहिए, ये अप्लाई करना चाहिए? मैं एक्चुअली गया था देखने के लिए कि रूट कैसा है एंड अगर मेरे को अटेम्प्ट करना है तो मुझसे पॉसिबल होगा क्या. सो ऑल द टाइम आई वॉज doing work on the road, elevation gain, temperature and everything. So I got idea that this is possible, the kind of elevation it has. So we can do this if we train for ourselves for multi-day races. So हाँ मतलब जैसे मैंने रूट देखा, एलिवेशन गेन देखा, कैसा एलिवेशन है, कैसे टेम्परेचर वेरिएशंस है, तुमको क्या करना पड़ेगा, कितना कंसिस्टेंसी आना चाहिए. तो वो सब देखने के बाद मुझे लगा कि हाँ we can do this. तो आपका सबसे मेमोरेबल रेस कौन सा था? क्योंकि इतने सीनिक रूट्स पे आप गए हो, इतने टफ रेसेस किए हैं, तो सबसे मेमोरेबल नॉट जस्ट फ्रॉम रूट बट एक्सपीरियंस के हिसाब से आपका क्या था? आई गेस मेरे सारे रेसेस, हर एक रेस मेरा मेमोरेबल ही होता है, बट सारे डिफरेंट रीजंस के लिए मेमोरेबल है. बट आई गेस अगर पिक करना है तो आई विल चूज डेक्कन क्लिफहैंगर 2018 because of competition, some reasons, some competitions. So yeah, that was the best race. Wow. तो हम अभी क्लोजिंग में आ रहे हैं, तो मुझे एक सवाल बहुत टाइम से था कि आपका पर्पस क्या है रेस अक्रॉस अमेरिका करने का? जो इतना लोग बोलते हैं वर्ल्ड टफेस्ट रेस है, 12 स्टेट से जाते हैं, 12 दिन लगते हैं, 12 दिन में ख़त्म करना होता है, 4 टाइम जोन है, इतने सारे क्लाइमेटिक चेंजेस है. तो पर्पस क्या है इसका? आपके लिए क्या पर्पस है? व्हाई डू यू वांट टू फिनिश इट? मेरे लिए पर्पस है कि मेरे को देखना है कि मैं अपने बॉडी को, अपने माइंड को किस लेवल तक पुश कर सकता हूँ. आई हैव डन 1800 किलोमीटर. मेरे को पता है कि मैं कितना मेंटली स्ट्रांग हूँ या फिजिकली स्ट्रांग हूँ. तो
मुझे यही देखना है कि हाँ बस मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे मैं खुद प्राउड फील कर सकूँ कि हाँ मैंने कुछ ऐसा किया है जो काफ़ी कम लोग करते हैं और कम लोग कर सकते हैं और मैंने वो अचीव किया है। तो मेरे को एक कहीं सेल्फ सेटिस्फैक्शन चाहिए कि हाँ मैंने कुछ किया है कि जो करना एक्चुअली थोड़ा डिफिकल्ट है। बकेट लिस्ट है। या बकेट लिस्ट आप बोल सकते हो कि थोड़ा डिफिकल्ट है बट काफ़ी महंगा बकेट लिस्ट है। तो मतलब नोटों का बकेट एक साइड में आई नो, हाँ तो नोटों का बकेट रखना पड़ेगा एक साइड में। तो मतलब वही सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए चल रहा है। मेरे को किसी को प्रूव नहीं करना है कि मैंने ये किया है या वो किया है। जस्ट लाइक व्हाट आई सेड, यस, कि मैंने खुद का एक टारगेट रखा है, मेरे को रैम कंप्लीट करना है। मे बी आई ट्राई टू फिनिश इट इन प्रॉपर टाइमिंग्स, मे बी आई मे ट्राई टू गेट रूकी अवार्ड और मे बी आई ट्राई टू compete with others or लेकिन I'll see my own कैपेबिलिटीज Yes. कि बस मैंने कैसा ट्रेन किया और जो बाकी लोग हैं उन्होंने कितना ट्रेन किया है। सो मेरा वही मेन मोटिव है कि मेरे को खुद का टारगेट मैंने रखा हुआ है, तो वो अचीव होता है नहीं होता है जो भी है पता Very चलेगा। तो क्या आपने क्या सेट किया है अभी? कितने दिन में आपका प्लान है? रोज सोच के ऐसे लगता है कि बस नहीं बहुत मुश्किल है। मतलब हम लोगों ने सोचा है कि 11 दिन में हम लोग ख़त्म करेंगे, ओके। बट 11 दिन भी कभी कभी लगता है कि हाँ पॉसिबल होगा क्या 11 दिन में। तो ठीक है, एक तरीके से अच्छा है कि हम लोग कॉन्फिडेंट नहीं है। हम लोग अभी भी थोड़े से डर के जा रहे हैं। तो वो कॉन्फिडेंस जब तक ना आए तब तक अच्छा है। बिकॉज मैंने देखा है कि जब वो कॉन्फिडेंस आता है आप और भी ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाते हो अगर आप टारगेट अचीव नहीं करते हो तो। और कभी भी झुक के जाना ही अच्छा है। कॉन्फिडेंस अच्छा है, कॉन्फिडेंस ज़्यादा अच्छा है और कॉन्फिडेंस हार्म करेगा। कंप्लीट करना है वो टारगेट। कंप्लीट करना वो टारगेट है ही है, बट अच्छे टाइम में कंप्लीट करना है। बहुत सारे जो आपको देख के इंस्पायर होते हैं, जैसे आप भी कई और रैम फिनिशर्स को देख के इंस्पायर हुए, तो क्या टिप देंगे आप, कैसे अप्रोच करें? सबसे पहले कोई भी इवेंट इजी नहीं होता है, भले वो 100 किलोमीटर का हो या 5000 किलोमीटर का हो। कभी कभी हर एक इवेंट में ऐसा टाइम आता है कि वो इवेंट तुमको रुलाएगा कि बस नहीं हो रहा है। मैंने 200 के BRMs देखे, जब वो 200 के BRMs 600 के BRM से ज़्यादा मुश्किल होता है बिकॉज ऑफ हीट और मे बी हेडविंड्स और एनीथिंग। सो हर एक इवेंट का रिस्पेक्ट करो, प्रॉपर पॉजिटिव एटीट्यूड से जाओ, ज़्यादा वो कॉन्फिडेंस मत रहो। हमेशा अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका रिस्पेक्ट करो। मजाक मस्ती चलता है नो डाउट, बट किसी को डिसरिस्पेक्ट ट्रीट मत करो। सब लोग वहाँ पे रेस करने आए या राइड करने आए हैं, तो इवेंट को रिस्पेक्ट करो। 1000 कबीर आएंगे, 1000 पन्नू आएंगे, बट इवेंट है इसलिए तुम लोग हो, तो तुमको इवेंट को पूरा रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। और अगर तुम उसको रिस्पेक्ट दोगे तो तुमको रिस्पेक्ट मिलेगा। तो कोई भी रेस छोटा नहीं होता है, पॉजिटिव माइंड से जाओ, प्रॉपर ट्रेनिंग करके जाओ, अपना होमवर्क करो कि रेस क्या है, रूट क्या है। तो मतलब तुमको कोई सरप्राइजेस ना मिलेगा इसमें कि तुमने प्लान ही नहीं किया और अचानक से तुमको एक 40 किलोमीटर का क्लाइम मिल जाए, बस मैंने तो देखा ही नहीं था, मैंने ये कहाँ से आ गया। तो प्रॉपर होमवर्क करो, देखो कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, रूट क्या है, वहाँ पे क्या मिल सकता है तुमको, वहाँ पे क्या नहीं मिलेगा। अनसपोर्टेड रेसेस में कभी कभी होता है कि कोई BRMs होते हैं जहाँ पे रात के टाइम पे खाना ही नहीं मिलता है और तुम नहीं रख सकते हो साथ में खाना इतना ज़्यादा। तो हर एक छोटा छोटा इवेंट होता है, उसके छोटे छोटे सरप्राइजेस होते हैं। तुमको होमवर्क करना सबसे मेन है, टाइम दो उसको, ट्रेन करो खुद को, न्यूट्रिशन का ध्यान रखो। ऐसे नहीं कि सिर्फ ट्रेनिंग कर रहे हो, खाए पिए कुछ भी नहीं, तो बॉडी बस फ्यूल कहाँ से लाएगा। तो 30% आई गेस ट्रेनिंग पे डिपेंड रहता है और 70% न्यूट्रिशन पे डिपेंड रहता है। अगर तुम बॉडी को फ्यूल दोगे नहीं तो बॉडी तो चलेगा नहीं। हर एक इवेंट स्पेशल होता है, हर एक इवेंट को थोड़ा अच्छे से करो और मेमोरीज बनाओ। फिजिकली मतलब तुमको प्रायोरिटी देना ही पड़ेगा तुम्हारे हेल्थ को। कोई लोग बोलते हैं कि नहीं मैं ज़िद्दी हूँ, पैर दुखा तो ठीक है चलेगा, मैं चला लूँगा, या कुछ भी होगा तो चला लूँगा। नहीं, वो सबसे बड़ा स्टुपिडिटी है। ऐसा मत करो, बिकॉज अभी ठीक हो जाओगे, इवेंट बाद में आएगा, फिर से कर लोगे। अगर अभी कोई परमानेंट इंजरी ले लोगे तो बस मे बी तुमको ज़िंदगी भर नहीं कर पाओगे। तो हमेशा प्रायोरिटी हेल्थ को दो। देखो कि तुम कितने कंफर्टेबल हो जब इवेंट कर रहे हो। लग रहा है अनइजीनेस है, लगा है कोई पेन है, लगा है कि पेन तुम्हारा बढ़ रहा है, तो बेटर है कि क्विट करो।
ऐसा नहीं है कि कोई कोट्स पढ़ ले कि आई नेवर गिव अप और आई नेवर क्विट और समथिंग जो भी होता है, नहीं, सब गलत है. सी इंटेलिजेंस और स्टुपिडिटी में बहुत छोटा सा डिफरेंस है. अगर तुमने उसको थोड़ा सा भी इजीली ले लिया ना तो फिर बहुत प्रॉब्लम्स हो सकता है. तो इसलिए हमेशा देखो कि क्या मेन है, तुम्हारा हेल्थ मेन है या वो इवेंट मेन है. राइट. तो अगर तुम हेल्थ को ग्रांटेड ले लोगे तो फिर तुम बाद में इवेंट्स में भी ना कर पाओ. तो अच्छा है कि टाइम लो, बॉडी का रिस्पेक्ट करो. तुम्हारी बॉडी हमेशा तुमको कोई ना कोई साइन देगी कि नहीं बॉस, नहीं करना है, इसके आगे नहीं जा सकते हैं. इवन हमको ट्रेनिंग के टाइम पे होता है कि कभी कभी लगता है कि माइंड बहुत फ्रेश होता है कि नहीं बॉस आज मैं 200 किलोमीटर चला के आऊँगा. लेकिन 20 किलोमीटर के बाद ही ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं तुम्हारी बॉडी तुमको बोल रही कि नहीं बॉस, नहीं करना है आज मुझे. तो बॉडी का साइन देखो, बॉडी को रिस्पेक्ट करो कि नहीं बॉस, नहीं करना है तो ठीक है, नहीं करना है. कभी कभी मेंटली होता है, मेंटली तुम ओवरकम कर सकते हो. वो बोरियत होती है कि नहीं यार क्यों करूँ, मैं घर पे बैठ के टीवी देखूंगा. तो तुमको देखना पड़ेगा कि ये मेंटल है या फिजिकल है. कभी कभी फटीगनेस आ जाता है, कभी कभी तुम्हारा कोई बॉडी पार्ट पेन कर रहा है. तो उसको जितना तुम रिस्पेक्ट करोगे उतना बॉडी तुमको रिस्पेक्ट करेगी. तो उतना आगे जा सके. आई नो. तो बॉडी के साइंस सुनो, उसको ऑब्जर्व करो, उसी के हिसाब से ट्रेन करो. नहीं मेरा स्केड्यूल है, मैं मिस नहीं कर सकता, मैं जाऊँगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे. सेकेंड डे आने ही वाला है, कल करोगे ही ट्रेन. ऐसा नहीं है कि तुम्हारा लास्ट दिन है तो कल कर लो, ठीक है ना. तो यही मतलब स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो होता है यही होता है कि तुमको अपना बॉडी का जो साइंस होता है वो अंडरस्टैंड करना पड़ता है, उसी के हिसाब से चलना पड़ता है. बहुत होते विल पावर पे भी खींचते, लेकिन वो हाँ मतलब ठीक है. मेंटली अगर फटीग है तो तुम ओवरकम करना बेटर है. हाँ तब तुम बोल सकते हो कि आई विल नॉट क्विट. मतलब तुमको लग रहा है कि मैं क्यों कर रहा हूँ या मैं क्या करने आया हूँ, तो ठीक है, वो मेंटली ये है. तो वो तुम बोलोगे नहीं यार बस ये ठीक है, अगर लग रहा है तो भी नहीं, मेरे को करना ही है. हाँ लेकिन फिजिकल कोई प्रॉब्लम है तो नहीं, रुक जाना है बेटर. तब में भी तुम्हारा मेंटल दिमाग बोल रहा होगा कि नहीं मैं करूंगा, मेरे को जाना है, मैं क्विट नहीं करूंगा. तो शट अप, मैं रुकने वाला हूँ, मेरे को नहीं करना है. शट अप लेग्स मतलब स्टॉप होना है. हाँ आई नो. तो शट अप लेग्स मत बोलो, शट अप ब्रेन बोलो. जब भी बोलना है. तो नहीं, लेग्स को शट अप बोलेंगे तो साइकिल नहीं चला पाएंगे. तो अगर वो सच में शट अप हो गया तो फिर चलेगा कैसे. तो अच्छा है कि साइंस सुनो और वही फॉलो करो जो भी. थैंक्स फॉर कमिंग ऑन द शो कबीर भाई. थैंक्स. बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके. थैंक यू. बहुत कुछ मुझे भी सीखने मिला. अगले इवेंट्स के लिए मैं भी शायद पार्टिसिपेट कर पाऊँ. हम compete करेंगे एक दूसरे के साथ. Thank you for coming on the show. Thanks for having me on the show. Make sure you all listen to this episode and the following episode as well, क्योंकि ये एक पेयर है, कबीर भाई और भरत भाई दोनों का ये पार्ट है अल्ट्रा हीरोज़ का. So make sure आप ये सुने, ये जितने हो सके उन्हें शेयर करें. Thank you very much. Thank you. Until then, hit the road.